Good morning, everyone. My name is Shivani Tyagi, your current affair teacher, and this is a beautiful, beautiful morning to start with today's current affair. And as usual, I'll start with a quotation, a beautiful quotation. So it says that who has a why to live can bear almost anyhow. So this is said to us by a philosopher, a thinker, Nietzsche. Now, Friedrich Nietzsche is known for his life philosophy, for giving reasoning, for giving logic, and he's an amazing thinker. So I will, being a UPSC student and being any government examination preparing student, I'll tell you to read his philosophy. You'll learn a lot about this life. Now, let me begin today with a very, bitter truth, quiet truth. Now, so not every struggle in life is loud. Some struggles happen in silence. When you wake up tired, when motivating is missing, when no one is watching, right? And still you sit with your books. So there will be days when your phone will be silent. Your friends are busy with their lives. Your family supports you, but you cannot feel that what exactly you are feeling, right? You are not able to tell that what exactly you are going through, right? And in these moments, you are not abandoned. You are being trusted by life because life only gives solitude, right? And to those people only who can actually handle it. I'm sure that you have heard it, but this is the truth. है ना? So this phase of yours, this teaches you discipline without supervision, without courage, right? Without any applause. है ना? So this is where you have to, stand up and where you have to think that this is the check that I have to give to this life. है ना? So just like in current affair, in today's current affair, many decisions are taken behind, closed doors. Many policies are shaped quietly, but they change millions and millions of lives, right? So this is why understand this very clearly that loneliness is not your enemy, right? It is a classroom where your character is taught. If you cannot sit alone and still move forward, you are already very stronger than you realize. So today, read the news, right? And do not fear about anything. Do not worry about anything, right? But with confidence, with more and more, thinking that you have to do something in your life, move forward. Handle each and everything fearlessly, right? So in today's current affair classes, with patience in our mind and with this good thought, let's start with our current affairs and make sure that your notebook is ready to write all the keywords. I've told you before as well, the keywords I'm providing you, the PYQs I'm taking you through, those are very important, right? These news that I'm bringing to you are very important, right? Now, गुड मॉर्निंग बच्चे, चलो पहले न्यूज की तरफ चलेंगे. The first news says Election Commission says it has constitutional duty to bar foreigners from voter rolls. Okay, so these kinds of news are very important. Why? Because they will tell you that what's the role of society, right? What government authorities have role to play, right? And how it is balanced, right? It tells about the articles as well, right? And it tells about the linkage of subjects too, right? So make sure that whenever these kinds of news are coming to you, you have pen and paper ready because there are lots and lots of things to learn and lots of things to write. चलो अब शुरुआत करते हैं. Imagine करो that there is a small town where elections are like held, ठीक है? और everyone who lives there knows the rule कि जो भी वहाँ पे resident है town का सिर्फ वही vote कर सकते हैं, right? And if someone from another town comes, right, or basically some from some other country, right, is mistakenly listed as a voter list, so that would be unfair, right? Or maybe against the rules and they'll be maybe removed as well, right? And the official must correct it. So this is the duty of official, right? So now a scale, this has to be a whole country, India, where millions of citizens, right, they are like voting in this election. So this voter list, that is electoral roll, must be it should be accurate, right? So this means that only eligible Indian citizens, they should be like appear in the list and no foreigners should be indulged. Now having a foreigner in this list on the voter list is it would violate the basic principle of democracy, right? So this is the whole story that we are aware of. ठीक है, इतनी कहानी तो हमें पता है. अब रियल सिचुएशन क्या चल रही है कि इंडिया में ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, राइट, is the constitutional body that is responsible for conducting election and maintaining the electoral law, है ना? ये भी हमें कहानी पता है, राइट? इलेक्शन कमीशन का रोल हमें पता है. We have like done this previously also. ठीक है. अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा है रिसेंटली, दे आस्क्ड वेदर इट इज constitutional duty of the ESI to ensure that not a single foreigner
इज इट इंक्लूडेड इन इलेक्टोरल रोल और नॉट, राइट? तो ये सवाल बेसिकली दिस इज अ okay. Before we start with this news, I want to tell you one more thing. Basically UPSC or any examination, right, they are not interested in political drama. I've said this before as well, है ना? They do not want to know कि opposition का इलेक्शन कमीशन के साथ में क्या भेदभाव चल रहा है. No, they are not interested in that. They just want to know इलेक्शन कमीशन के क्या रोल है, क्या आर्टिकल आता है जब इलेक्शन कमीशन का नाम आता है, राइट? व्हाट इज द हेडलाइन है, इन व्हाट एग्जांपल्स यू आर पुटिंग, ठीक है? ऑपोजिशन के साथ साथ में, गुड मॉर्निंग विष्णु, ऑपोजिशन के साथ साथ में क्या भेदभाव है, यूपीएससी एंड एनी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन इज नॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग दैट, ठीक है? So election commission stood in the Supreme Court when Supreme Court asked this question, right, and defended its role, right? तो ईएसआई ने क्या बोला, ईएसआई ने बोला कि जी हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी की ही बेसिकली ये ड्यूटी है कि वो मेंटेन करे, जितना भी डाटा है इलेक्टोरल रोल जो है वो मेंटेन करके रखिए, एक्यूरेट है या नहीं वो चीज देखिए. So that includes what? That includes doing everything reasonably possibly to identify and basically remove names of foreigners who are basically, you know, wrongly included. So it also includes ensuring कि voter list में, you know, there is like cleanliness, ठीक है, वो ज्यादा reliable है, reflect कर रहे सारे के सारे eligible Indian citizens, right? So this is the duty of ESI. अब ESI ने वहाँ पे explain करा that it uses various processes data verify करने के लिए citizenship का, residency का, before indulging and including someone in the voter list. But the ESI also noted that the task is not always easy, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि रिकॉर्ड जो होते हैं वो इनकम्प्लीट रह जाते हैं, ठीक है? या तो ऐसा होता है कि पीपल जो होते हैं दे हैव लाइक माइग्रेटेड, ठीक है? या फिर ऐसा होता है कि डॉक्यूमेंटेशन जो है वो अनक्लियर है, ठीक है? लेकिन फिर भी ESI said that the goal is to make the role as accurate as possible, और जितने भी नॉन सिटीजन है उनको रिमूव किया जाए. तो आसान शब्द में कहा जाए तो क्या बात हो रही है कि इलेक्शन कमीशन टोल्ड द सुप्रीम कोर्ट दैट इट हैज द constitutional responsibility to make sure that only citizens, Indian citizens, are in the voter list, ठीक है? और कोई भी foreigner जो है वो basically इस list में include ना हो, right? So the commission said to work it to keep the electoral roll clean and accurate, जो कि बहुत ज्यादा essential है for fair elections, right? पहले अब न्यूज जानने से पहले ये पढ़ लेते हैं कि इसका लिंकेज क्या है, right? In what subjects it is coming. देखो जब हम इसकी बात करते हैं, so we have GS-2 as it is telling us about what? Election Commission. Article 324, ठीक है? Election Commission की पावर क्या है, क्या रोल प्ले करेगा, right? Whenever you have Election Commission anyway, ठीक है, ये आर्टिकल आंख बंद करके डाल दो, आर्टिकल 324, ठीक है? I'm telling you again, articles you should know, ठीक है? क्योंकि बहुत ज्यादा वेटेज रखते हैं ये. Whenever you are writing anything and you are writing the article next to it, it plays very important part, ठीक है? जैसे इलेक्शन कमीशन दिखे, put the article 324 there, right? यहाँ पे किसके बारे में बात करेंगे, फ्री और फेयर इलेक्शन के बारे में बात करेंगे, गवर्नेंस में किसके बारे में बात करेंगे, रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में, व्हाट आर द रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ अथॉरिटीज, ठीक है? एथिक्स और ऐसे में इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी, डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, ठीक है? ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. द इलेक्शन कमीशन इज आल्सो नोन एज गार्डियन ऑफ डेमोक्रेसी, सो इट इज द ड्यूटी ऑफ ईसी टू मेक द इलेक्शन फ्री एंड फेयर इलेक्शन. एग्जैक्टली, दैट्स वेरी ट्रू बच्चे, ठीक है? तो ये सारी चीजें हम लोग समझने वाले हैं. तो बेसिकली ये आपको हेल्प किससे करेगा, ये आपको हेल्प करेगा कि समझने में कि इलेक्शन कमीशन कैसे प्रोटेक्ट करता है डेमोक्रेटिक प्रोसेस, जैसे कि अभी बोला, ठीक है? एंड व्हाट ड्यूटीज बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैव, राइट? और इलेक्टोरल रोल जो एक्यूरेसी है दैट शुड बी लाइक वाइटल, ठीक है? फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, क्यों होने चाहिए वो भी हम पढ़ेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने क्या पूछा, राइट? एंड व्हाई दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, राइट? तो सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चंस पूछे, राइट? उनके क्या कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस हैं, व्हाई इट इज कमिंग टू अस, right? Is it the duty of election commission to make sure that not every single foreigner is basically included in India's electoral rolls, ठीक है? ये सारी की सारी ड्यूटी सिर्फ उन्हीं की है, राइट? रिस्पॉन्स में क्या क्या बोला गया है वो सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है? चलो अब पहले ये समझेंगे कि यहाँ पे दिस इज अ डिस्कशन दैट इज हैपनिंग विद सुप्रीम कोर्ट और इनके बीच में, ठीक है? चलो इनका तो समझ में आ गया कि इन्होंने डिफेंड कर दिया, राइट? दे सेड दैट यस इट इज आवर ड्यूटी, बट समटाइम्स यू नो accuracy is not, you know, accuracy is not seen because of so and so reasons, right? So ये तो यहाँ समझ में आ गया. अब ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछा, why did supreme question ask this question, ठीक है? So supreme court was hearing a case related to voter verification और electoral rolls, ठीक है? तो इस hearing के दौरान में court wanted clearly, right? They wanted some, you know, clarity कि कौन responsible है citizenship check करने के लिए, right? कि can foreigners be removed from voters list? Is it a legal or constitutional duty of the ESI, ठीक है? So court was not interfering in elections, right? They was not like, they were not taunting या फिर they were not basically mocking or something. They just wanted to know, ठीक है? Interfere नहीं कर रहे थे, बल्कि what they are exactly doing, what courts are supposed to do. क्या करते हैं कोर्ट का काम क्या है? Ensure करना कि constitutional duties जो है
वो अपनी सारी की सारी ड्यूटीज प्रॉपरली कर रही है नहीं, है ना? चेक भी तो करेंगे ना कि अथॉरिटीज जो है, जितनी भी सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, वो एग्जैक्टली अपना काम कर रही है नहीं, याद तो है उन्हें अपनी ड्यूटी, राइट? सो दैट्स व्हाट सुप्रीम कोर्ट डिड, राइट? सो ये क्या दिखाता है? ये हमें दिखाता है जुडिशियल ओवरसाइट, ठीक है? क्या दिखाता है हमें? जुडिशियल ओवरसाइट, कि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है। इट्स नॉट दैट कि कोई भी अपनी मनमानी से काम कर रहा है, राइट? और अगर किसी को ड्यूटीज अलाइन की गई है तो उन पे चेक करने वाला कोई नहीं है, राइट? एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर फॉर इंडियन डेमोक्रेसी, है ना? तो यहाँ से हमें क्या पता चला अबाउट जुडिशियल ओवरसाइट? सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल था वो समझ में आया, क्यों सवाल पूछा वो समझ में आया, इलेक्शन कमीशन ने क्या बोला वो समझ में आया, आर्टिकल 324 इज दैट वो भी समझ में आ गया, राइट? अब थोड़ा सा although you are aware of what like role of election commissions are, but still भी एक बार जान लेते हैं फिर से। तो अंडर आर्टिकल 324 की अगर हम बात करते हैं, राइट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इलेक्शन कमीशन जो है वो रिस्पॉन्सिबल किस किस चीज के लिए? इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए है, इलेक्टोरल रोल्स प्रिपेयर कराने के लिए है, इंश्योर करने के लिए कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो हमारे, है ना? तो क्या हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने ये बोला है कोर्ट को कि प्रिपेयरिंग वोटर लिस्ट इज नॉट अ मैकेनिकल टास्क, है ना? उसमें बहुत ज्यादा वेरिफिकेशन होती है ऑफ एलिजिबिलिटी, और सिटीजनशिप की ये बेसिक कंडीशन है, राइट? सो इंक्लूडिंग इवन वन फॉरनर वुड वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा वायलेट क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक लॉ वायलेट हो जाएगा, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स वायलेट हो जाएंगे। सो दिस इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट द सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड दिस क्वेश्चन, राइट? सुप्रीम कोर्ट इज चेकिंग कि सारी की सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो है वो ढंग से काम कर रही है या नहीं, राइट? नाउ आप इलेक्टोरल रोल्स की बात करें तो इतने इंपॉर्टेंट क्यों है? तो जो इलेक्टोरल रोल्स है, राइट, ऑफिशियल लिस्ट ऑफ पीपल हु कैन वोट, सो दिस इज द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। वोटर लिस्ट गलत तो नहीं है, राइट? फेक वोटिंग भी हो सकती है ना? जेन्युइन सिटीजन जो है वो उनका जो राइट है वोट करने का वो लूज हो सकता है, राइट? जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, अच्छा, ये पता है सबको, ठीक है? आई होप कि समझ में आ गया होगा कि क्या क्या है हमारे पास इलेक्टोरल रोल्स, ठीक है? और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? अब लेट्स अंडरस्टैंड दैट हु कैन बी अ वोटर इन इंडिया, ठीक है? ये तो सबको पता है, एंड आई थिंक आप लोगों को अब तो यहाँ पे लिख भी देना चाहिए चैट बॉक्स में, आई कैन नॉट सी एनीवन राइटिंग दिस, ठीक है? अगर हम बात करते हैं दैट हु कैन बी अ वोटर, यस, पोर्टल पे स्टूडेंट, ओके। सो व्हेन वी टॉक अबाउट कि वोटर कौन कौन हो सकते हैं, तो पहला तो इंडियन सिटीजन, ठीक है, 18 साल, राइट, बी लाइक 18 ईयर और बेस ओल्डर, राइट? और ऑर्डिनरी सिटीजन होना चाहिए, ठीक है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? फॉरेन नेशनलिस्ट नहीं होना चाहिए, इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, नॉन सिटीजन्स, राइट? सो दे कैन नॉट वोट इवन इफ दे लिव इन इंडिया, राइट? सो वोटिंग इज बेसिकली इट्स नॉट अ ह्यूमन राइट, इट इज अ constitutional right of citizens only. That is what? It is a constitutional right of citizen only. ठीक है? आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है? अब ये भी समझते हैं कि ईएसआई वेरीफाई कैसे करता है सिटीजनशिप को। सो ईएसआई ने एक्सप्लेन करा अपना बेसिकली यूजेस कि वो आइडेंटिफाई करता है डॉक्यूमेंट्स को एड्रेस प्रूफ के साथ, फील्ड वेरिफिकेशन होती है बाय ऑफिशियल्स, राइट? और बेसिकली ऑब्जेक्शंस होते हैं, क्लेम्स प्रोसेसेस होते हैं, एंड इफ समवन बेसिकली कंप्लेन्स अबाउट अ सस्पिशियस वोटर या फिर कोई डॉक्यूमेंट है जो डाउटफुल है, राइट, तो उसके बाद क्या होता है? द नेम कैन बी इन्वेस्टिगेटेड अगेन, क्या था? या फिर प्रोसेस होने के बाद में वो डिलीट किया जा सकता है, राइट? तो बेसिकली दिस शोज अस कि ये जो है वो फॉलो करता है प्रोसीजर, राइट? आर्बिट्रेरी एक्शंस नहीं, राइट? वो एक्चुअली आर डूइंग, दे आर एक्चुअली डूइंग समथिंग, ठीक है? दे आर एक्चुअली डूइंग फील्ड वर्क, राइट? दे आर एक्चुअली डूइंग देयर ड्यूटी, राइट? सो दिस इज व्हाट वी आर नोइंग फ्रॉम दिस। अच्छा, जो उन्होंने मेंशन करी इलेक्शन कमीशन ने कि कभी-कभी क्या होता है कि परफेक्ट एक्यूरेसी मेंटेन करना वो थोड़ा-सा डिफिकल्ट हो जाता है। व्हाई डिड दे से दिस? सो ईसाई ने ऑनेस्टली बोल दिया कोर्ट को कि इंडिया हैज अ ह्यूज पॉपुलेशन, ठीक है? रिकॉर्ड्स कभी-कभी इनकम्प्लीट रह जाते हैं या फिर पुराने रहते हैं या फिर कुछ-कुछ ऐसा होता है कि लोग माइग्रेट कर जाते हैं, ठीक है? या फिर नेम चेंजेस आ जाते हैं या फिर पुअर डॉक्यूमेंटेशन एग्जिस्ट करते हैं, राइट? सो 100% वेरिफिकेशन इज वेरी वेरी चैलेंजिंग, राइट? बट एफर्ट्स के साथ में और इंटेंट मैटर के साथ में दिस कुड बी डन, राइट? बट yes, they have like said it very honestly कि इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, these are the reasons कि जो हमारे पास एक्यूरेसी है वो कभी-कभी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, राइट? अब ये जो हमारे पास इशू है ये लिंक क्यों है डेमोक्रेसी के साथ? तो if foreigners are allowed to vote, citizens' political right are diluted.
ठीक है, सॉवरेनिटी क्या होगी, वो वीक हो जाएगी, राइट। इलेक्शन जो है लेजिटिमेट, दे कैन बी क्वेश्चन, ठीक है। तो इसीलिए सिटीजनशिप बेसिकली दे आर व्हाट, दे आर पॉलिटिकल मेंबरशिप। वोटिंग जो है दिस इज लाइक एक्सप्रेशन ऑफ सॉवरेनिटी, राइट। सो वोटिंग बेसिकली दिस वोटर इज लाइक इज प्रोटेक्टिंग हमारा डेमोक्रेसी भी, कॉन्स्टिट्यूशन भी, और हमारा रूल ऑफ लॉ भी, है ना। तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर डेमोक्रेसी, ठीक है। अब जुडिशियल का रोल क्या है यहाँ पे, ठीक है, और वो इतना ज्यादा मैटर क्यों करता है। तो सुप्रीम कोर्ट डिड नॉट एक्यूज द ईएसआई, ठीक है, उन्होंने दे डिड नॉट ऑर्डर द मास डिलीशन, ठीक है, उन्होंने बस ओके okay, उन्होंने बस बेसिकली ये चेक किया है कि बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है वो अपना काम कर रही है नहीं, राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशनल क्लैरिटी के लिए, राइट, ओनली टू शो दिस कॉन्स्टिट्यूशनल क्लैरिटी दे आस्क्ड दिस क्वेश्चन एंड दिस मैटर वाज रेज्ड, ठीक है। तो दिस रिफ्लेक्ट्स व्हाट, दिस रिफ्लेक्ट्स बैलेंस ऑफ पावर। ये बेसिकली रिस्पेक्ट करता है इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस की, अकाउंटेबिलिटी विदाउट एनी इंटरफेरेंस, राइट। एंड दिस इज एग्जैक्टली हाउ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस वर्क एंड इट शुड वर्क, ठीक है। अगर किसी के पास कोई चेक करने के लिए अथॉरिटी रहेगी ही नहीं, तो हम लोग एक टाइम पे अपनी मनमानी करने पड़ेंगे, है ना। जैसे कि अभी लास्ट एग्जांपल में हमने क्या देखा था, यूएस ने, ठीक है, यूएस ने क्या किया वेनेजुएला के साथ, राइट। सो देयर शुड बी अ स्ट्रांग चेकिंग अथॉरिटी जो बेसिकली अपनी ड्यूटी प्रॉपर्ली करे, राइट। यूएन के पास इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होने के बाद भी, इतने नॉर्म्स होने के बाद भी स्टिल यूएस डिड समथिंग लाइक दिस, ठीक है। सो दिस रेजेस क्वेश्चंस आल्सो, राइट, कि कैसे कैसे गवर्नेंस चेक करनी चाहिए, कैसे कैसे अथॉरिटीज मेंटेन होनी चाहिए, राइट, व्हाट आर द मेजर्स वी टेक, राइट। सो मेक श्योर दैट यू आर लिंकिंग टू दीस थिंग्स, ठीक है। अच्छा, चलो इतनी कहानी आई होप आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, राइट। और इससे ज्यादा जितना हमने क्लास में डिस्कस करा है अबाउट इलेक्शन कमीशन, राइट, यू विल नॉट रीड एनीवेयर अबाउट दिस, ठीक है। सारे मेजर्स ले लिए, डेमोक्रेसी को हमने समझ लिया, राइट। वी हैव अंडरस्टूड लाइक ईच एंड एवरीथिंग है, ठीक है। यस दिव्यम, यू वांट टू से समथिंग बच्चे? दिव्यम, डू यू वांट टू से समथिंग? इफ नॉट प्लीज अनम्यूट, सॉरी म्यूट योरसेल्फ। अच्छा, अगर हम इस चीज के बारे में आप बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें डेमोक्रेसी के साथ लिंक समझ में आ चुका है, आर्टिकल्स इसके साथ क्या क्या रेलेवेंट होंगे वो समझ में आ गया, सुप्रीम कोर्ट का रोल क्या होता है वो समझ में आ चुका है, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज क्या होती है, गवर्नेंस क्या होती है, दैट वी हैव अंडरस्टूड, ठीक है। इससे ज्यादा यू विल नॉट रीड एनीवेयर अबाउट इलेक्शन कमीशन, ठीक है। आई होप सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। चलो चलो, वन क्वेश्चन फॉर यू पीपल। एज यूजुअल समय दिया गया है आपको, जल्दी जल्दी से करो। कहाँ है आंसर्स? वेयर आर द आंसर्स? अभी तो मैंने डिक्टेट कराया था आंसर आपको इस चीज का। यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स। Okay, portal student, if you want to like participate or if you want to say something, then you can unmute yourself. A. Okay. And rest? I cannot see answer on portal. YouTube पर it's A. Okay. 1 and 2. मैंने बहुत बार बोला है कि आप जब भी कोई आंसर लिखें, आंसर लिखने के बाद, ठीक है, मेक श्योर दैट यू आर राइटिंग द रीजंस आल्सो। इसमें तो इतना टाइम लेना भी नहीं चाहिए, इतना टाइम क्यों लिया जा रहा है? So yes, the correct answer it is a constitutional body established under Article 324 of the Indian Constitution. अभी मैंने आर्टिकल बताया था आपको. It is responsible for the preparation and revision of election rules. ठीक है. अब यहाँ पे it has no role in verifying citizens. ठीक है, ये भी गलत है. Which of the statement? ठीक है, चलो. Next.
These questions should not take more than 10 or 15 seconds. कुछ seconds पढ़ने के लिए, ठीक है, और कुछ second answer करने के लिए. Because it can directly deal with the verification of citizenship. It can deliver. Yes, exactly. Very good, Gargi बच्चे. क्या हो गया आज क्वेश्चंस करने में कोई इतना डिफिकल्टी कैसे हो रही है? These are like direct questions. इसमें तो कुछ है भी नहीं. The Supreme Court of India seeking clarification from the Elections Commission on voter rolls reflects which constitutional principle? Executive supremacy, judicial overreach, judicial oversight and accountability, या legislative privilege? इतना टाइम? The answer is C. C क्यों है? कौन बताएगा C क्यों है? क्योंकि हमारे जो जुडिशियल्स है, राइट, बेसिकली दे आर चेकिंग कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है वो काम कर रहा है ठीक से या नहीं कर रहा है, राइट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस और हमारे लॉ के हिसाब से काम कर रहा है या नहीं. इलेक्शन कमीशन हमारा इंडिपेंडेंट है, राइट, बट इट इज नॉट अबव व्हाट? जुडिशियल से अबव थोड़ी ना है, राइट. सो वी हैव करेक्ट आंसर व्हाट? वी हैव करेक्ट आंसर सी. चलो, you should not take time for these kinds of questions. Chalo. Okay, the another news, the right to disconnect in an always on economy. Okay, तो इस न्यूज से पहले आई लाइक टू से कि देर आए पर दुरुस्त आए, ठीक है. Finally, these things are considered, these things are recognized, these things are like talked about, discussed, right? And finally, they are in between us, right? Mental health is something that we are not discussing nowadays, right? थोड़ा थोड़ा importance मिल रहा है, but then again, importance मिलना and then actually implementing or on like ground reality, that's a like different thing, बिल्कुल ही अलग चीज है. Okay, न्यूज किसके बारे में बात कर रहे हैं? पहले वो बात कर लेते हैं. तो कहानी के साथ शुरू करूंगी कि इमेजिन करो, ठीक है, देयर इज अ प्रोफेशनल नेम्ड अनन्या, ठीक है, और वो एक ऐप बेस्ड जॉब काम करती है जो उसे कस्टमर से कनेक्ट करता है 24/7. और अनन्या ऑफन फाइंड्स रिसीविंग हर मैसेजेस, ठीक है, कभी कभी रात को ये चेक भी करती है मेल्स वगैरह, वीकेंड्स पे भी, ठीक है, रिस्पॉन्ड करने पड़ते हैं उसे कॉल्स को, इवन व्हेन शी इज सपोज टू बी ऑफ ड्यूटी, राइट. हर स्मार्टफोन, हर फोन नेवर सीम्स टू स्टॉप बजिंग. शी इज ऑलवेज एंड ऑलवेज कनेक्टिंग टू हर जॉब, ठीक है. तो सून अनन्या नोटिसेस समथिंग वेरी वरिंग अबाउट हर, ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील करती है, टायर्ड फील करती है एंड अनेबल टू एंजॉय हर फ्री टाइम. क्यों? क्योंकि वो हमेशा जो है कनेक्टेड रहती है, राइट. शी जस्ट लाइक डजंट वर्क हर ऑफिशियल आवर्स, शी इज मेंटली टाइड टू हर जॉब ऑल द टाइम, ठीक है, कनेक्टेड है वहां से, ठीक है, इसलिए मेंटली भी कनेक्टेड है, राइट. इवन व्हेन शी इज एट होम या फिर वो रेस्ट भी कर रही है तभी भी वो कनेक्टेड है अपनी जॉब के साथ में, राइट. सो दिस सिचुएशन इज नॉट यूनिक टू अनन्या, it has become like common in today's time, like it is like always on economy, right. So with the smartphones, हमारा remote working के साथ में, online platforms के साथ में, app based jobs के साथ में, right. So many people find it very very difficult to switch off from work, right. So जो boundary हमारी काम की और हमारी personal life की, right, तो वो thin नहीं, वो खत्म हो चुकी है, right. I will not even say कि वो thin है या फिर the line is still there, it's not there, right. So हमारी जो personal life है वो blur भी नहीं बोलूंगी, thin भी नहीं बोलूंगी, it's not existing there, right. Even if a company doesn't officially expect late night responses, the pressure of being reachable all the time makes one feel like they must do it, है ना. खुद से भी वो प्रेशर रहता है कहीं ना कहीं, राइट. तो इसीलिए देयर इज अ कंसेप्ट व्हिच केम एंड व्हिच इज बेसिकली डिस्कस्ड, जिसका नाम है राइट टू डिस्कनेक्ट. क्या है इसका नाम? राइट टू डिस्कनेक्ट, ठीक है. अब वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी, ठीक है. अब दिस राइट टू डिस्कनेक्ट का मतलब है कि दैट पर्सन शुड बी एबल टू टर्न ऑफ फ्रॉम वर्क आउटसाइड वर्किंग आवर्स, ठीक है, बिना किसी डर के कि उसकी जॉब चली जाएगी, राइट, या फिर दैट पर्सन इज गोइंग टू बी पैरालाइज्ड, राइट. तो आसान शब्द में बोला जाए तो आफ्टर ऑफिस आवर्स एम्प्लॉयज शुड नॉट बी एक्सपेक्टेड टू रिस्पॉन्ड टू कॉल्स, ना ही उनके मैसेजेस, ना ही बेसिकली ईमेल्स, राइट, फ्रॉम वर्क, राइट. सो दिस आइडिया हैज लाइक स्टार्टेड गेनिंग अटेंशन इन मेनी कंट्रीज, क्योंकि मेंटल हेल्थ जो है वहां पे मैटर करती है. और फाइनली लाइक इट्स फॉर गुड कॉज एंड इट्स लाइक इट्स अ वेरी गुड थिंग कि हमारे इंडिया में भी ये चीज डिस्कस हो रही है, राइट. बिकॉज पीपल नीड रेस्ट एंड फैमिली टाइम भी चाहिए होता है. तो कॉन्स्टेंट जो कनेक्टिविटी हमारी रहती है वो बेसिकली स्ट्रेस और बर्नआउट ही देती है हमें, और कुछ नहीं, राइट. सो इसीलिए यहाँ पर इस एडिटोरियल में ये आर्गुमेंट दी गई है कि जो इकोनॉमीज है, राइट, और जो हमारा वर्क प्लेस है वो चेंज होना चाहिए, स्पेशली रिमोट वर्क के लिए चेंज होना चाहिए, गिग वर्क के लिए चेंज होना चाहिए, जो ऐप के साथ में 24/7 कनेक्टेड है, राइट. सो वर्कर्स नीड लीगल एंड सोशल प्रोटेक्शन that gives them what? That gives them freedom to fully
disengages from their work when they are actually off duty, right? So इसीलिए यहाँ पे ये चीज सजेस्ट की गई है पॉलिसी मेकर्स को, एम्प्लॉयर्स को, सोसाइटी को, कि उन्हें ये चीज रिकग्नाइज करनी होगी कि रेस्ट जो है लग्जरी नहीं है। और हमारे यहाँ पर राइट व्हेन इट कम्स टू इंडिया, कहीं ना कहीं if someone is resting, if someone is not working, right, even after spending like 16 to 17 hours in offices, right, उसके बाद भी ऑफिस के बाद में भी जो हम काम करते हैं इंक्लूडिंग दैट, उसके बाद भी अगर हम थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं तो वी फील गिल्टी, है ना, बुरा लगता है कि आज तो बहुत आराम कर लिया, आज तो मूवी देख ली, राइट, वी ऑफन फील दैट, राइट, बिकॉज सोसाइटी हैज केप्ट दिस कंसेप्ट कि अगर हम रेस्ट ले लेते हैं या फिर थोड़ा टाइम अपने लिए ले लेते हैं तो इट्स कंसीडर्ड लग्जरी, बट इट शुड नॉट बी द केस, राइट, because it is affecting our mental health somewhere, right? So इसीलिए it is essential for well-being, हमारी productivity के लिए और हमारी health life के लिए कि all these things are considered, rest is considered, right? आसान शब्दों में समझा जाए तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि digital world many workers feel they must be always on because of constant messages, हमारे emails की वजह से और ये work demands की वजह से, right? So this is why this editorial is basically arguing कि हमारे workers को जो है right to disconnect मिलना चाहिए, लीगल प्रोटेक्शन होनी चाहिए सो दैट दे कैन स्विच ऑफ फ्रॉम वर्क आवर्स विदाउट एनी प्रेशर या फिर किसी डर के, राइट, एंड दे शुड लाइक हेल्प प्रोटेक्टिंग फॉर देयर हेल्थ आल्सो, रिलेशनशिप आल्सो एंड फॉर क्वालिटी फॉर लाइफ आल्सो, राइट। सो दिस इज व्हाट दिस न्यूज़ इज टॉकिंग अबाउट, ठीक है। अब ओके चलो, अब इस न्यूज को पढ़ने से पहले एग्जैक्टली किस बारे में बात है, ये हिस्ट्री को जानने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड कि न्यूज हमें कनेक्ट किस किस चीज से करवाती है। तो सबसे पहले तो ये हमें कनेक्ट करवाते हैं जीएस 2 से, ठीक है। क्या समझेंगे यहाँ पे, गवर्नेंस के रोल्स को समझेंगे, लेबर रिफॉर्म्स को समझेंगे, सोशल जस्टिस को समझेंगे। लेबर रिफॉर्म्स पे आई हैव लाइक डिस्कस्ड मेनी टाइम्स, राइट। तो इस बार यू विल टेल मी दैट व्हाट लेबर रिफॉर्म्स आर, राइट। बहुत बार मैंने न्यूज में ये चीज डिस्कस किया, राइट। जीएस 3 में बात करेंगे डिजिटल इकोनॉमी के बारे में, फ्यूचर ऑफ वर्क के बारे में। जीएस 4 में एथिक्स में ह्यूमन डिग्निटी, वर्क एथिक्स, टेक्नोलॉजी वर्सेस ह्यूमन वेलबीइंग, ठीक है। ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। एंड ऑल्सो यू हैव सीन कि मैं हमेशा यहाँ पे ऐसे में टेक्नोलॉजी वर्सेस ह्यूमन वेलबीइंग, राइट, ये कीवर्ड्स लेके आती हूँ, राइट। तो दीज आर द कीवर्ड दैट यू शुड नोट डाउन, ठीक है। बहुत ज्यादा यूज कर सकते हो इफ यू आर लाइक इन द स्पेशली केस स्टडीज और या फिर किसी भी डिलेमा में, राइट, पॉलिटी या फिर ऐसे में, राइट, यू कैन यूज दीज कीवर्ड्स, राइट। अच्छा, अब हम बात करेंगे, यहाँ पे हम लोग वर्कर राइट्स के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। फ्यूचर ऑफ वर्क के बारे में बात करेंगे, डिजिटल इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे, वर्कर्स के राइट के बारे में बात करेंगे, वर्क प्लेसेस इन एथिक्स कैसा होता है, राइट, दैट ऑल थिंग्स विल बी डिस्कस्ड है, ठीक है। अब ये टॉपिक जो है आपको समझाने में हेल्प करेगा इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजी चेंजेस कैसे अफेक्ट करता है सोसाइटी को या फिर गवर्नेंस को, ठीक है, और क्यों जरूरी है, ठीक है, ये प्रोटेक्शन वर्कर्स के लिए, राइट। और ये मॉडर्न टाइम्स में, आज के टाइम पे हम लोग इस चीज के बारे में बात क्यों कर रहे हैं, राइट। सो ऑल दीज थिंग्स आर बेसिकली नेसेसरी, ठीक है। अब इश्यू क्या है, प्रॉब्लम क्या आ रही है, तो प्रॉब्लम ये है मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो रही है हमारे पास में, स्मार्टफोन्स है, ईमेल्स है, व्हाट्सएप है, वर्क एप्स है, राइट। पीपल आर कनेक्टेड 24/7, एग्जैक्टली तुम्हें पता है कि कोई क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कहाँ है, कैसे है, राइट। एंड दिस हैज मेड वर्क प्लेस रीचेबल ऑल द टाइम, है ना। पहले क्या होता था कि काम खत्म हुआ, आप लोग अपने ऑफिस से घर गए और फिर उसके बाद यू हैड योर पर्सनल स्पेस, कनेक्टिविटी नहीं थी, प्रॉब्लम नहीं थी, दे हैड देयर लाइफ, ठीक है। अब क्या होता है कि ऑफिस फॉलोज यू होम, ठीक है, वर्क मैसेजेस कम लेट नाइट, वीकेंड्स पे आ जाता है, हॉलीडेज पे आ जाता है। तो इसीलिए इस एडिटोरियल में ये आर्गुमेंट दी गई है, दिस हैज क्रिएटेड अ न्यू फॉर्म ऑफ प्रेशर ऑन वर्कर्स, ठीक है। इसीलिए नए राइट्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसीलिए यहाँ पे मेंशन किया गया है दिस राइट टू डिस्कनेक्ट, ठीक है। जो जहां पर भी you have to mention about workers right, so in example you can write this word explaining it with one line, ठीक है। अच्छा मैम, over 66% of total employees are feeling burned out, exactly, and this is the reason, क्योंकि काम फॉलो करता है, राइट। अच्छा, ये तो समझ में आ गया कि राइट टू डिस्कनेक्ट किया है, बट यहाँ पे एक वर्ड और है और ये वर्ड मेंशन है ऑलवेज ऑन, तो ये ऑलवेज ऑन क्या है, व्हाट ऑलवेज ऑन हियर इज, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे अभी ऑलवेज ऑन के बारे में। तो this always on economy is one where actually work never fully stop, ठीक है। एम्प्लॉयज को यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जाता है आप कॉन्स्टेंटली अवेलेबल रहो, ठीक है। डिजिटल टूल्स लाइक इरेज बाउंड्रीज, ठीक है, ऑफिसेज में, होम्स में। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि स्मार्टफोन्स
हमारा जो वर्क फ्रॉम होम कल्चर है, ठीक है, दीज ग्लोबल क्लाइंट्स इन डिफरेंट टाइम जोन्स, ठीक है, ऐप बेस्ड और हमारे गिग वर्कर्स, राइट। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से ये होता है कि इवन व्हेन वर्कर्स आर नॉट ऑफिशियली वर्किंग, दे फील मेंटली ऑन ड्यूटी, ठीक है। अगर तुम लोग बेसिकली छोड़ भी देते हो फोन, यू डू नॉट वांट टू डू इट, बट तुम मेंटली वहीं प्रेजेंट रहोगे, दैट व्हाट इफ इट इज समथिंग इंपॉर्टेंट, व्हाट इफ माय रिक्वायरमेंट इज देयर, व्हाट इफ दे फायर्ड मी बिकॉज ऑफ दिस, राइट। सो यू आर मेंटली देयर, ठीक है। अभी राइट टू डिस्कनेक्ट क्या है, सो वर्कर हैज द राइट टू इग्नोर ऑफ वर्क कॉल्स, मैसेज और हमारे ईमेल्स, दे कैन इग्नोर इट, ठीक है, बिना किसी कॉन्सिक्वेंसेस के, दे कैन डू इट, राइट, बिना किसी डर के, ठीक है, किसी पनिशमेंट के, किसी बैड परफॉर्मेंस रिव्यू के, राइट। सो इट डज नॉट मीन लेजीनेस, इट डज नॉट मीन रिफ्यूजिंग वर्क, इट डज नॉट मीन दैट यू आर रिड्यूसिंग प्रोडक्टिविटी, नहीं। इसका मतलब है कि आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपना पर्सनल टाइम, आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपनी मेंटल पीस, आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपना ह्यूमन डिग्निटी, राइट। बस इसीलिए ये जरूरी है, राइट। अब ये सीरियस प्रॉब्लम क्यों बन चुकी है, क्योंकि अर्लियर लेबर लॉज वर डिजाइन किस लिए किए गए थे, फैक्ट्रीज के लिए किए गए थे, फिक्स वर्किंग आवर्स के लिए किए गए थे, फिजिकल वर्क प्लेसेस के लिए गए थे, लेकिन मॉडर्नाइजेशन तो हो रही है ना। we are seeing that there are so many apps, ठीक है, जो अब ऐसे प्रोवाइड करते हैं, where they see like so many gig workers, right। तो इसी की वजह से ये जो ऐप बेस्ड वर्क्स हो गए वो बेसिकली कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रहे हैं, राइट। मॉडर्नाइजेशन इज देयर, बट वी आर फॉलोइंग बेसिकली ऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस, राइट। पुराने रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं हम लोग, और उसी की वजह से हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज नहीं हो रहे हैं, वो चेंज नहीं हो रहे हैं, तो अभी भी हम लोग कहीं ना कहीं अटके हुए हैं still on the previous rules and regulations, right। so this is why it becomes a very serious problem, especially आज के टाइम पे, right now। यहाँ पे क्या होता है कि आज के टाइम पर दिस ट्रेडिशन अबाउट लेबर लॉस, राइट, जो पुराने पुराने थे, राइट, दे डू नॉट क्लियरली डिफाइन कि आफ्टर आवर कम्युनिकेशन कैसे होना चाहिए, राइट, एंड दे आर नॉट प्रोटेक्टिंग डिजिटल पर्सनल टाइम ऑल्सो। सो वर्कर्स बेसिकली आर फॉलोइंग व्हाट, वो तो हमारा लीगल ग्रे एरिया वाला फॉलो कर रहे हैं ना, राइट। सो द वर्कर्स आर फेलिंग इनटू व्हाट, लीगल ग्रे एरिया। पुराने वाले रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं जो फैक्ट्रीज में होते थे, लिमिटेड वर्किंग आवर्स में होते थे, बट एट दिस मोमेंट वी आर कनेक्टेड 24/7 and this is the expectation that comes from the factories and that comes from the companies as well, ठीक है। एक्सपेक्टेशन से वेरी रखी जाती है, नहीं रखा जाता है तो बेसिकली टेकिंग आउट टाइम फॉर हेल्थ इज कंसीडर्ड लग्जरी है, राइट। इसीलिए कहीं ना कहीं हमें इतना ज्यादा गिल्टी फील होता है। ये सारे मेजर्स जो है वो इन चीजों के ना तो बात होती है और ना ही वो रूल्स एंड रेगुलेशंस में कहीं भी मेंशन किए गए, राइट। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से ये हो रहा है कि हमारा जो इम्पैक्ट है मेंटल हेल्थ पर और सोसाइटी पर वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसीलिए इस एडिटोरियल में ये हाईलाइट किया गया है कि दिस इज कॉन्स्टेंटली कनेक्टिंग लीडिंग अस टू व्हाट, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, ठीक है, स्ट्रेस होती है लोगों को, एंजाइटी होता है, बर्नआउट होता है, स्लीप डिसऑर्डर्स, ठीक है। सोशल इम्पैक्ट कैसे हो रहा है, सोशल इम्पैक्ट ऐसे हो रहा है कि कम टाइम दे पा रहे हैं फैमिली को, पुअर वर्क लाइफ बैलेंस है, ठीक है, इमोशनल एग्जॉशन इतना ज्यादा हो चुका है ना। एथिकल इश्यूज की यहाँ पर बात करें तो ह्यूमंस आर लाइक ट्रीटेड लाइक मशीन्स, ठीक है, उन्हें दे आर नॉट ट्रीटिंग लाइक पीपल, दे आर ट्रीटेड लाइक मशीन्स, राइट। तो यूपीएससी का लिंक कैसे आएगा, तो यूपीएससी का लिंक आएगा दैट गवर्नेंस इज नॉट ओनली अबाउट ग्रोथ बट ऑल्सो अबाउट ह्यूमन वेलबींग, ठीक है। तो यूपीएससी में आप इस तरीके से एग्जाम्पल्स या फिर इस तरीके से लाइन लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये सवाल ह्यूमन डिग्निटी का भी है, ठीक है। ह्यूमन डिग्निटी का कैसे है, क्योंकि रिस्पेक्ट फॉर पर्सनल लाइफ शुड बी देयर, राइट टू रेस्ट, साइकोलॉजिकल सेफ्टी, ठीक है। तो इफ अ वर्कर इज ऑलवेज अफ्रेड ऑफ मिसिंग अ कॉल, ठीक है, कि वो हमेशा ही अलर्ट पर रहेगा, तो क्या होगा, फ्रीडम जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, डिग्निटी क्या है वो रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए इस एडिटोरियल को लिंक किया गया है राइट टू एथिक्स से, सोशल जस्टिस से और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज से। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि यूपीएससी का क्या रेलेवेंस है यहाँ पर, ठीक है। अब अगर हम बात कर रहे हैं कि फाइनली इंडिया हैज रिकॉग्नाइज दिस, तो अब ये भी बात करते हैं कि इंडिया के अलावा कहीं रिकॉग्निशन मिला है। देन आई वांट टू टेल यू दैट आई थिंक इंडिया इज नॉट द फर्स्ट कंट्री हु इज रिकॉग्नाइज दिस, बल्कि लेट कंट्री बोल सकते हैं जिसने ये रिकॉग्निशन दिया है, राइट। क्योंकि फ्रांस में इट हैज बीन लाइक ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड, राइट, दे रिकॉग्नाइज द राइट टू डिस्कनेक्ट इन लेबर लॉ, ठीक है। लार्ज कंपनीज में, यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज में वहाँ पे रूल सेट किए गए हैं ऑन आफ्टर आवर्स कम्युनिकेशन ऑल्सो। बाकी कंट्रीज में जैसे कि स्पेन हो गई, बेल्जियम हो गई, यूरोप के कुछ पार्ट्स भी है, ठीक है। तो ये दिखाता है कि ये ग्लोबल इशू है, ठीक है, सिर्फ इंडियन इशू नहीं है। एंड दिस शुड बी एनालाइज, दिस शुड बी कंसीडर्ड लाइक वर्ल्ड वाइड, ठीक है। इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये न्यूज हमारे लिए। अब इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, इंडिया के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया के पास आईटी वर्क प्लेस सबसे ज्यादा है, राइट। गिग इकोनॉमी जो है वो ज्यादा बढ़ रही है, ठीक है। हमारे पास ये जो लॉन्ग वर्किंग आवर्स का कल्चर है, राइट, वो अभी इतना ज्यादा एक्सपेंड हो रहा है।
ठीक है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारी वीक मेंटल हेल्थ प्रोटेक्शन हो रही है, ना कोई डिजिटल लेबर राइट्स है हमारे पास में, तो इसीलिए इंडिया को फेस करना पड़ रहा है हाई बर्नआउट, ठीक है, साइलेंट मेंटल हेल्थ के क्राइसिस देखने को मिल रहा है, प्रोडक्टिविटी जो है वो लॉस हो रही है लॉन्ग रन में, ठीक है। अब यूपीएससी का कैसे रेलेवेंस होगा, यूपीएससी कैसे यूज करेगा इसको, लेबर रिफॉर्म्स के बारे में आप लिख सकते हो, डिजिटल गवर्नेंस के बारे में यू अंडरस्टूड, सोशल जस्टिस के बारे में यू अंडरस्टूड, राइट। तो दीज आर द थिंग्स दैट बेसिकली आर मेंशनिंग अबाउट, ठीक है। एथिक्स इन पब्लिक पॉलिसी, समझ में आया कि कैसे लिंक करना है न्यूज को, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, राइट। तो जब भी आप वर्क रूल्स के बारे में आप लिखोगे, लेबर लॉज के बारे में आप लिखोगे, so this is the example that you can write, this is the word that you can write, ठीक है। अब एडिटोरियल यहाँ पे डिमांड क्या कर रहा है, क्या चाहते हैं वो, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ डिमांड या फिर स्ट्रिक्ट लॉज की नहीं है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा सजेशन दिया गया है, उन्होंने बोला है कि पॉलिटिक्स डिस्कशन में लेकर आओ, लीगल रिकग्निशन कर दो, है ना, एम्प्लॉयर के लिए गाइडलाइंस डाल दो, कल्चरल चेंज जो है वो थोड़ा सा और डाल दो वर्क प्लेसेस पे, राइट। तो इससे गोल क्या रहेगा कि इकोनॉमिक एफिशिएंसी दिखेगी, ह्यूमन वेलबींग दिखेगा, राइट। सिर्फ यही चीजें जो है सजेस्ट की गई है, राइट। एंड देन यू हैव टू लिंक दिस विद कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नेंस के साथ में भी यू हैव टू लिंक, राइट। क्यों, क्योंकि ये हमें एक आर्टिकल के बारे में बताता है, इसका आर्टिकल का नाम हमेशा हमेशा आता है, द आर्टिकल इज आर्टिकल 21, और जब तक मैं यहाँ पर आर्टिकल 21 लिख रही हूँ, मेक श्योर दैट यू आर राइटिंग कि आर्टिकल 21 है क्या। कैन सी, अच्छा, अब समझ में आया। आर्टिकल 121 क्या बोलता है, राइट टू लाइफ, ठीक है, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क के बारे में बताता है, वेलफेयर स्टेट पॉलिसीज के बारे में बताता है, राइट। तो इसीलिए गवर्नेंस को अडेप्ट करना चाहिए, टेक्नोलॉजी, नया वर्क पैटर्न, ठीक है, मेंटल हेल्थ का जो कंडीशनिंग है, राइट, इट शुड बी देयर, इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड, राइट। तो इसीलिए ये न्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, स्पेशली यूपीएससी के लिए। When it comes to labor laws, when it comes to constitutional rights, when it comes to articles like this, these are favorite topic of UPSC, ठीक है। तो इसीलिए make sure आप अगर PYQs भी देखोगे, अगर आप टॉपर की कोई कॉपी भी उठाकर देखोगे, एग्जाम्पल्स में you'll also see, so you'll see examples like this, ठीक है। देखो कि कैसे फॉर्मेट करते हैं, कैसे आर्टिकल्स का मेंशन है, एग्जाम्पल्स कैसे लिखते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू न्यूज लाइक दिस, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सिर्फ एक कनेक्टिविटी के बारे में नहीं है, दिस कवर्स मेनी मेनी सब्जेक्ट्स टुगेदर, ठीक है। बहुत सारी चीजों के बारे में बात करी है, इससे ज्यादा यू विल नॉट फाइंड एनीवेयर, ठीक है। इससे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के बारे में, इससे ज्यादा डेमोक्रेसी के साथ कनेक्ट करने में, इससे ज्यादा लेबर लॉज के साथ कनेक्ट करने में, या फिर किसी आर्टिकल के साथ कनेक्ट करने में, यू विल नॉट फाइंड इट एनीवेयर, ठीक है। तो अगर तुम्हें ये वीडियो समझ में आई है, इट्स गुड, राइट डाउन द कीवर्ड्स, नहीं समझ में आई है, सी इट अगेन, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू नो द बैकग्राउंड आल्सो, एंड राइट डाउन द कीवर्ड्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, राइट टू लाइफ, वेरी गुड। चलो, क्वेश्चन फॉर यू, अब तक आई वाज होपिंग कि आप लोगों का आंसर आ जाए, बट आई कैन नॉट सी, ओके, सी, व्हाई सी, right of workers to disengage from work related, the term right to disconnect often seen in the use refers to, ठीक है, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। Whenever I dictate you the story, make sure that you are listening to the words, ठीक है, make sure that you are writing the keywords also, सारे articles also, क्योंकि अगर आप PYQs देखोगे ना, from there only these basically prelims questions are डायरेक्ट आते हैं, कुछ ऐसे नया नहीं पूछ लिया जाता, so make sure that you are listening to me when you are writing all those keywords as well, ठीक है। चलो इसका बताओ जल्दी, which of the following best explains why the right to disconnect has become relevant in recent times? This is not PYQ, ये न्यूज में से उठाया हुआ है, when I was dictating you, उस टाइम का ही। Yes, I hope the question is visible. क्या है करेक्ट आंसर बच्चे? ओके, द करेक्ट आंसर वी हैव इज 1 and 2, ठीक है। 1 क्यों है, जैसे कि मैंने बताया था, ग्रोथ ऑफ स्मार्टनेस एंड डिजिटल कम्युनिकेशन,
बेसिकली एम्प्लॉयज जो है वो रीचेबल है 24/7 ईमेल्स के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, वर्क एप्स के थ्रू, ठीक है। 2 की बात करें, एक्सपेंशन ऑफ रिमोट वर्क एंड गिग इकोनॉमी, ठीक है। तो वर्क फ्रॉम होम जो है, फ्लेक्सिबल कॉन्टेक्ट जो है, वो बेसिकली ब्लर ही नहीं खत्म कर रहा है बाउंड्री, है ना, बिटवीन बेसिकली ऑफिस लाइफ और हमारी पर्सनल लाइफ में, राइट। दिस इज रॉन्ग। चलो यस, वेरी गुड। अच्छा, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट न्यूज, ठीक है। व्हाट आर बायोमेटेरियल्स एंड हाउ डू दे वर्क, ठीक है। अब बायोमेटेरियल्स, ठीक है, अब इमेजिन करो एक फ्यूचर जहां पे प्लास्टिक बोटल्स, ठीक है, क्लोथ्स, राइट, एंड हमारा पैकिंग और इवन बिल्डिंग मटेरियल्स आर नॉट मेड फ्रॉम ऑयल टेकन फ्रॉम द ग्राउंड, बट बल्कि वो बनाए जा रहे हैं प्लांट्स से, क्रॉप्स से, नेचुरल वेस्ट से, ठीक है। तो अब ये जो फ्यूचर है, इट इज फाइनली फाइनली बिकमिंग रियल, राइट। और बायोमटेरियल्स दे आर एट द सेंटर ऑफ दिस चेंज, ठीक है। अब पहले बात करेंगे बायोमटेरियल्स है क्या। तो बायोमटेरियल्स आर बेसिकली मटेरियल्स जो कि बायोलॉजिकल सोर्सेज से बनाए जाते हैं, जैसे कि हमारा प्लांट्स हो गया, प्लांट्स में क्या क्या हो गए, जैसे कि हमारे पास शुगर केन हो गया, राइट, मेज हो गया, राइट। सो दिस एग्रीकल्चर वेस्ट, नेचुरल फाइबर्स, ठीक है, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस आल्सो, जैसे कि फर्मेंटेशन, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग पेट्रोलियम या फिर फॉसिल फ्यूल्स, biomaterials are basically, they are like used as nature and in biology, right. So they are already being used in जैसे कि पैकेजिंग में, टेक्सटाइल्स में, कंस्ट्रक्शंस में, हेल्थ केयर में, ठीक है। नाउ बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस, पहले हम लोग समझ लेते हैं पहले हम लोग समझ लेते हैं कि हमारे पास टाइप्स ऑफ बायोमटेरियल्स क्या क्या है, ठीक है। अब जब हम टाइप्स ऑफ बायोमटेरियल की बात करते हैं तो पहले पास है हमारा ड्रॉप इन बायोमटेरियल्स। क्या है हमारे पास? ड्रॉप इन बायोमटेरियल्स। ये क्या है? ये हमारे पास दीज आर जस्ट लाइक प्लास्टिक ओनली, ठीक है। लेकिन बनाए किससे जाते हैं? ये बनाए जाते हैं हमारे प्लांट्स में, राइट। ये बेसिकली, सॉरी, सो फैक्ट्रीज डोंट नीड टू चेंज मशीन, ठीक है। जैसे कि हमारे पास बायोपेट्रोकेट, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा हमारे पास है ड्रॉप आउट बायोमटेरियल्स, ठीक है। ड्रॉप आउट बायोमटेरियल्स की बात करें तो ये नए मटेरियल है, ठीक है। सो वी नीड व्हाट, वी नीड न्यू सिस्टम फॉर दिस, ठीक है, उन्हें प्रोसेस करने के लिए, रिसाइकिल करने के लिए, ठीक है। जैसे कि हमारे पास हो गया पॉलीएटिक एसिड जो होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आते हैं नोवेल बायोमटेरियल्स, ठीक है। तो ये 3 टाइप के हमारे पास है। जब हम लोग बात करते हैं नोवेल बायोमटेरियल्स की, सो दीज आर लाइक फ्यूचर मटेरियल्स, ठीक है, स्मार्टर देन नॉर्मल मटेरियल्स, ठीक है। जैसे कि हमारा सेल्फ हीलिंग मटेरियल्स हो गए, ठीक है, बायोइम्प्लांट्स हो गए, एडवांस कंपोजिट्स हो गए, ठीक है, ये सारे। अब ये समझेंगे कि हमारे पास ये बायोमटेरियल जो है वो जरूरी क्यों है, व्हाई डू वी नीड दीस बायोमटेरियल्स। आई होप दीस 3 टाइप्स ऑफ बायोमटेरियल्स आर अंडरस्टूड टू यू, ठीक है। अब ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये हमारे पास जरूरी क्यों है, व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, ठीक है। अब इमेजिन करो कि इंडिया की सिचुएशन कैसी है। तो इंडिया लाइक इम्पोर्ट्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ फ्यूसल, ठीक है। और जो फॉसिल बेस्ड प्लास्टिक होती है, जो केमिकल होता है, एंड लाइक इट हैज ह्यूज एग्रीकल्चर रिसोर्सेज आल्सो, एंड दे वांट टू रिड्यूस पोल्यूशन, ठीक है, क्लाइमेट डैमेज थोड़ा कम करना चाहते हैं, एंड दे वांट टू सपोर्ट फार्मर्स इनकम। सो बायोमटेरियल हेल्प्स इंडिया अचीव बहुत सारे गोल्स एक साथ में, ठीक है। पहले तो वो इम्पोर्ट रिड्यूस, राइट। सो इफ वी टॉक अबाउट दिस, इफ इंडिया मेक्स इट्स ओन बायोमटेरियल्स, तो यहाँ पे जो है डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी ऑन ऑल वेस्ट इम्पोर्ट्स, है ना। दूसरा, फार्मर्स को हेल्प मिलेगी, एग्रीकल्चर वेस्ट, ठीक है, जो क्रॉप्स है वो कहीं ना कहीं दे कैन बी यूज्ड एज रॉ मटेरियल्स, ठीक है। इससे क्या होगा कि फार्मर्स को एक्स्ट्रा इनकम मिल जाएगी, है ना। उसके बाद एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। सो बायोमटेरियल सपोर्ट्स व्हाट, दिस सपोर्ट्स बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक्स, क्लाइमेट एक्शंस पे और सर्कुलर इकोनॉमी पे भी, राइट। सो ये एक ऐसी चीज जिसको बोल सकते हैं कि सोने पे सुहागा, है ना। सो यू आर यूजिंग दिस नॉट ओनली फॉर द बेनिफिशियरी ऑफ फार्मर्स बट ऑल्सो फॉर इकोनॉमिक बेनिफिशियरी एज वेल, ठीक है। अब जब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं तो आज के टाइम पे इंडिया एग्जैक्टली वेयर इट स्टैंड्स। सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस, तो इंडिया के जो बायोमेट्रिक सेंटर है, ठीक है, वो अभी यंग है और अभी ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, फास्ट ग्रो कर रहे हैं, बट स्टिल दे आर ग्रोइंग, ठीक है। तो इंडिया बायोप्लास्टिक मार्केट वाज लाइक अबाउट $500 मिलियन, ठीक है। 2024 की बात है, कितना था? $500 मिलियन, ठीक है। कब की? 2024, ओके। तो जब इसकी बात कर रहे हैं हम, सो अब क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अब जो हमारा इंडिया का जो बायोमेट्रिक सेक्टर है वो स्ट्रांगली ग्रो करने वाला है इन द कमिंग ईयर्स, ठीक है। तो अब अगर हम डेवलपमेंट्स के बारे में बात करें,
तो यहाँ पे इन चीनी मिल्स ऑल्सो वी आर लाइक सीइंग कि यहाँ पे सेटिंग अप हो रही है, ठीक है। क्या हो रहा है कि इंडिया लार्जेस्ट पीएलए प्लांट्स इज फाइनली सेटिंग अप इन उत्तर प्रदेश, ठीक है। स्टार्टअप्स हो रहे हैं, जैसे कि फूल डॉट को इज देयर, ठीक है। वहाँ पे फ्लैट जो वेस्ट को जो है बेसिकली दे आर टर्निंग इनटू समथिंग, वहाँ पे उनको बायोमटेरियल्स बनाया जा रहा है, ठीक है। प्राज इंडस्ट्रीज आर देयर, सो दीज बेसिकली आर एग्जांपल्स व्हिच आर टेलिंग कि कहीं ना कहीं बेसिकली हमारे जो इंडस्ट्री है, दिस बायोमटेरियल इंडस्ट्री, इट इज ग्रोइंग, ठीक है। अभी इतना फास्ट नहीं है, बट देन अगेन फाइनली वी आर डूइंग विद इट, ठीक है। तो चैलेंजेस क्या क्या आ सकते हैं, तो व्हेन वी टॉक अबाउट द चैलेंजेस, तो जर्नी जो है वो तो प्रॉमिसिंग है, नो डाउट इन दैट, ठीक है, पर इजी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आके हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि क्रॉप्स दैट इज यूज फॉर बायोमटेरियल्स, वो बेसिकली दैट कैन नॉट कम्पीट विद फूड। ओवर फार्मिंग जो है वो कोज क्या करेगा, वाटर स्ट्रेस कोज करेगा, सोयल डैमेज कोज कर सकता है, राइट। पुअर वेस्ट मैनेजमेंट ऑल्सो कैन बी लाइक सीन, ठीक है, एंड इट कैन रिड्यूस इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स ऑल्सो। सो पॉलिसीज जो है वो यहाँ पे स्कैटर्ड होंगी अक्रॉस एग्रीकल्चर, ठीक है, अक्रॉस एनवायरमेंट ऑल्सो एंड इंडस्ट्रीज ऑल्सो। तो अगर इंडिया इज बेसिकली मूविंग स्लोली, ठीक है, अदर कंट्रीज कैन डोमिनेट ऑल्सो, ठीक है, इंडिया को बेसिकली फोर्स करेगा वापस से इम्पोर्ट करने के लिए, ठीक है। इसीलिए इंडिया को क्या करना चाहिए, टू सक्सीड इंडिया, व्हाट इंडिया शुड डू, इंडिया शुड लाइक थिंक अबाउट बिगर बायोमैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, फर्मेंटेशन वगैरह के लिए बेटर क्रॉप प्रोडक्टिविटी हो सकती है, टेक्नोलॉजी नई यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स थोड़ा और बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो रूल्स जो है थोड़े और क्लियर हो सकते हैं, लेबलिंग के लिए, रिसाइकलिंग के लिए, कंपोजिटिंग के लिए। सो गवर्नमेंट बेसिकली सपोर्ट्स थ्रू पब्लिक बेसिकली प्रोक्यूशंस, और उसके बाद इंसेंटिव्स के थ्रू भी, पायलट प्लान्स के थ्रू भी, शेयर्ड फैसिलिटीज के थ्रू भी, राइट। सो विद दीज मेजर्स समवेयर वी कैन लीड, बट देन अगेन देयर आर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स दैट वी कैन फेस, बट देन सोल्यूशन इज देयर ओनली, ठीक है। देन अगेन इट्स ऑल अबाउट इम्प्लीमेंटेशन, जितना जल्दी इम्प्लीमेंटेशन होगा उतना ज्यादा हमारे पास प्रॉब्लम्स की सोल्यूशन मिलेगा। बट दिस इज अ कंसेप्ट, ठीक है, दैट वी आर कमिंग अप विद, एंड अगर जितना जल्दी ये चीज इम्प्लीमेंट हो जाता है, राइट, so we'll be basically earning more and more, farmers को इस पे सबसे ज्यादा हेल्प मिलेगी, and then again environment will be safe for this, ठीक है। इससे ज्यादा अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है, ठीक है। I hope this is understood. So that's it for today. I'll see you tomorrow at the same timing, right? And for the PDF, the PDFs will be pinned in the comment section. You can have access of those, and make sure that you are writing the task that I've given you. And with this, I'll sign off, and I'll see you at the same time tomorrow. Thank you.